Good morning everyone. As you have seen that we have already finished first chapter of chemistry before your summer break. So I'm going to start with the second chapter today. The second chapter of chemistry in class 10th is acid, bases and salts. So you have already studied about, you have initial knowledge about acids and bases and what salts are. We are going to continue forward and will enhance your knowledge about these topics. So let's start with the first topic, which is acids. In class 8 you have studied acids as substances which are sour in taste, यानी ऐसे substance जिनका taste जो है वो खट्टा होता है उन्हें हम acids कहते थे. So when you drink orange juice, you feel it to be sour. When you taste lemon juice, you feel it to be sour. Sometimes even curd becomes sour when it's kept for some time. So this taste, the sour taste of the substance is because of acid present in it. So the earlier definition that you have studied about acids was the substances that are sour in taste are known as acids and substances which are bitter in taste are known as bases. Today I am going to teach you the definition of acids and bases in terms of ionization. So let us see what the definition is. So acids are substances that furnish H plus ion in aqueous solution. So you can see over here that they furnish H plus ion. This is hydrogen ion in aqueous solution. So what do you mean by aqueous solution? An aqueous solution is the solution in which water is used as a solvent. So when water is used as a solvent, such type of solutions are known as aqueous solutions. So substances that furnish H plus ions in aqueous solutions are known as acids. Now let us see how many types of acids we have. So types of acids. Basically there are two types of acids, mineral acids and organic acids. Now what are mineral acids? Those acids which are derived from inorganic compounds are known as mineral acids, and organic compound acids are known as organic acids. So now before the concept of mineral acid and organic acid is cleared, I'll have to explain to you what is an inorganic substance and what are organic substances. So compounds of carbon and hydrogen. When carbon and hydrogen combines together, it forms hydrocarbon. So hydrocarbon and their derivatives are known as organic compounds. So you have seen in class 9th also you have studied, or in this chapter in class 10th also you will be studying about periodic classification of elements. So in our periodic table 118 elements are present, and out of these 118 elements, carbon can form large number of compounds itself. So compounds of carbon and hydrogen are known as hydrocarbons, and the compounds derived from them are known as organic compounds. So what are organic compounds? Organic compounds are hydrocarbons and their derivatives. So we will be dealing with organic compounds in detail in the 4th chapter of your book, that is carbon and compounds. So hydrocarbons and the derivatives are known as organic compounds, and rest of the compounds which are known to us are known as inorganic compounds. So now we come back to the topic. What is mineral acid? So mineral acids are the acids which are derived from inorganic compounds. So what are they? You know about them. Usually they are strong acids. Some examples of mineral acids are HCl, which is hydrochloric acid, HNO3 nitric acid, H2SO4 sulfuric acid. Now we come to organic acids. They are found naturally in fruits, vegetables, insect, sting, etc. As I told you, as I quoted the example that when you drink orange juice, it seems to be sour. So why is the taste of the orange juice sour? The lemon juice is sour in taste because of some acids which are present in them, and these acids are So students, we were talking about organic acids. Now organic acids occur naturally and they are present in fruits, vegetable, insect, sting, etc. So some of the examples of organic acids are lactic acid, which is present in curd or milk,
citric acid which is present in citrus fruits. Then you have formic acid which is present in sting of ant. So these are acids which occur naturally and they are derivatives of hydrocarbon, that is they are derived from compounds of hydrogen and carbon, and that is why they are known as organic acids. Another important point of difference between acids, mineral acids and carboxylic acid is that mineral acids are strong acids, whereas carboxylic acids or organic acids are weak acids. They are weak acids, that's why they can be consumed. We cannot consume these mineral acids. We cannot. Yes, one mineral acid that we consume is carbonic acid, and carbonic acid is H2CO3, and this carbonic acid is present in aerated drinks, that is cold drinks. So carbonic acid can be consumed. It is weak in nature, though it is a mineral acid, but its nature is it's weak in nature. But other mineral acids like HCl, hydrochloric acid, nitric acid, sulfuric acid, phosphoric acid, they are strong in nature and we cannot consume them. But organic acids can be consumed. Like you can say, as I told you, that organic acids or carboxylic acids are weak acids, so they can be consumed. Some examples of organic acids I have written over here, and they are acetic acid. Acetic acid is found in vinegar, सिरका में present होता है ये. Formic acid and sting में present होता है. Oxalic acid is present in onion. Tartaric acid is present in tamarind. इमली में भी बहुत ज्यादा खटास होती है, और इमली की खटास किस वजह से है? इमली की खटास इस वजह से होती है क्योंकि उसके अंदर टार्टरिक एसिड प्रेजेंट होता है, और टार्टरिक एसिड भी जो है एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो भी एक ऑर्गेनिक एसिड है और एक वीक एसिड है, इस वजह से उसको कंज्यूम किया जा सकता है. लेकिन मिनरल एसिड्स को हम कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, उनको हम खा नहीं सकते, उनको टेस्ट भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग एसिड होते हैं और वो कोरोसिव होते हैं. तो कोरोसिव होने की वजह से अगर हमारे स्किन के कांटेक्ट में कहीं भी आएंगे तो हमारी स्किन जो है वो जल जाएगी. तो इस वजह से इनको हैंडल करने के लिए हमको बहुत ही केयरफुल होना पड़ता है और बहुत सारे प्रिकॉशंस के साथ इन एसिड्स को हैंडल करना पड़ता है. तो जब आप लैब में जाओगे तो आप इन एसिड्स को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को तो आप करोगे ही हैंडल, नाइट्रिक एसिड भी करोगे और सल्फ्यूरिक एसिड को भी हैंडल करना सीखोगे कि कैसे हम इनको हैंडल करते हैं. सो आई होप ये जो टाइप्स ऑफ एसिड है ये आपको क्लियर हो गया होगा. दो तरह के एसिड होते हैं, मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड. मिनरल एसिड स्ट्रांग होता है, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से डिराइव्ड होता है, लेकिन ऑर्गेनिक जो होते हैं वो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, नेचर में प्रेजेंट होते हैं, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, एनिमल के स्टिंग में, या इंसेक्ट के स्टिंग में प्रेजेंट होते हैं. दे आर डिराइव्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स एंड दे आर वीक इन नेचर. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट, वी आर कमिंग बैक टू द डेफिनेशन. Substances that furnish H+ ion in aqueous solution are known as acids. तो अब हम ये देखेंगे कि एसिड्स H+ आयन कैसे फर्निश करता है. तो उसके लिए चलिए अब इसके डेफिनेशन पे काम करते हैं, और उसी डेफिनेशन पे हम देखेंगे कि बेसिस भी जो है वो सिमिलर टाइप के कंपाउंड होते हैं, लेकिन वो बस डिफरेंस ये है कि बेसिस जो है वो हाइड्रोक्सिल आयन को एक्वस सोल्यूशन में आयनाइज करते हैं. तो पहले ये वर्ड फर्निश करना क्या होता है, ये वर्ड फर्निशिंग का क्या मतलब है, ये आयनाइजेशन का क्या मतलब है, मैं आपको ये दिखाती हूँ. सो लेट अस स्टार्ट विथ HCl. ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, एंड इन HCl देयर इज अ कोवलेंट कंपाउंड बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन. क्लास 9th में आपने कोवलेंट कंपाउंड के बारे में पढ़ा था. कोवलेंट कंपाउंड्स आर those compounds which are formed by sharing of electron of the bonded atoms. तो यहाँ पे बॉन्डेड एटम कौन है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, इनकी बॉन्डिंग हुई है. तो दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर किया और कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया. तो जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, एक बात आपको याद रखना है कि कोई भी एसिड जो है वो अपने प्योर फॉर्म में एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं शो करता. एसिडिक प्रॉपर्टी क्या है, H+ आयन का फर्निश करना. तो अगर हम प्योर HCl लेंगे तो प्योर HCl जो है वो एसिड की तरह बिहेव नहीं करेगा, उसमें वाटर का प्रेजेंट होना जरूरी है, उसको सोल्यूशन के फॉर्म में होना जरूरी है. तो ये वाटर का प्रेजेंस क्यों जरूरी है, अब हम इसके बारे में बात करते हैं. तो जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड होता है, एंड कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन ईच ऑफ हाइड्रोजन एंड
क्लोरीन। तो इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, देन ये प्रोसेस होता है। क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करेगा, दोनों ही इलेक्ट्रॉन को लेकर निकल जाएगा। और जब दोनों ही इलेक्ट्रॉन को लेकर निकल जाएगा तो क्लोरीन के पास आ जाएगा एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, और वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसका है, हाइड्रोजन का है। तो यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि क्लोरीन के ऊपर प्रेजेंट है एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन था वो उससे दूर चला गया, इस वजह से उसके ऊपर हो गई हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन की कमी, एंड सो इट इज कॉल्ड H+। सो HCl इज ब्रेकिंग अप इनटू आयंस, H+ है Cl-, और इसी को कहते हैं फर्निशिंग, दैट मीन्स आयनाइजेशन। यही है आयनाइजेशन। So again you can see that how ionization will take place in the nitric acid, HNO3 में ionization का प्रोसेस कैसे होगा। अब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में भी कोवलेंट कंपाउंड है, ये कोवलेंट बॉन्ड है, और ये कोवलेंट बॉन्ड जब टूटेगा तो हाइड्रोजन के पास का इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल के ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, एंड फॉर्मेशन ऑफ H+ एंड नाइट्रेट आयन विल टेक प्लेस। और H+ को प्रोटॉन भी बोला जाता है, हाइड्रोजन आयन को प्रोटॉन भी बोला जाता है। प्रोटॉन क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन की होती है 1, दैट मीन्स उसके पास एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, और उस जब एक प्रोटॉन को भी हम, एक इलेक्ट्रॉन को भी हम निकाल देंगे आयनाइजेशन से, तो बच जाएगा उसके न्यूक्लियस में बस एक प्रोटॉन। इस वजह से H+ को प्रोटॉन भी कहा जाता है। सो इन मेनी बुक्स यू कैन सी दैट फर्निशिंग ऑफ प्रोटॉन, ये लैंग्वेज यूज करेंगे, अदरवाइज दे कैन यूज द लैंग्वेज एज फर्निशिंग ऑफ H+ आयंस। सो नाइट्रिक एसिड will ionize in this way. Now let us take up sulfuric acid, H2SO4. Now sulfuric acid ionization takes place in 2 steps. यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, एंड दोनों ही हाइड्रोजन एटम्स जो आयनाइजेबल है वो H+ के फॉर्म में टूट सकते हैं। तो लेकिन ये दोनों का फर्निशिंग जो है वो एक ही स्टेप में नहीं होगा, ये 2 कंसेक्यूटिव स्टेप्स में होता है, यानी एक के बाद लगातार 2 स्टेप में होता है। तो पहले स्टेप में एक हाइड्रोजन आयन निकल गया तो बच क्या गया, HSO4-, यानी हाइड्रोजन सल्फेट आयन यहाँ पे बच गया। सेकेंड स्टेप में फिर से यही प्रोसेस रिपीट होगा, एंड HSO4- will again furnish a proton, and it will form proton and sulfate ion. So you can see that ionization of sulfuric acid takes place in 2 different steps, and it furnishes 2 protons in consecutive steps. Now let's talk about organic acid. Organic acid में कैसे ये होता है furnishing of H+ ion या furnishing of proton, तो उसको देखते हैं एक बार पहले। तो एक सिंपल सा ऑर्गेनिक एसिड जो है वो बड़ा कॉमन सा है, एसिटिक एसिड, जो कि विनेगर या सिरका में प्रेजेंट होता है। वी आर गोइंग टू सी दिस वन। सो CH3COOH, ये है एसिटिक एसिड, और इसका आयनाइजेशन कैसे होगा, और ये वीक एसिड क्यों होते हैं। ये वीक एसिड इसलिए होते हैं क्योंकि पूरा का पूरा ये जो मॉलिक्यूल है वो आयन के फॉर्म में नहीं टूटता है, ओनली पार्शियल आयनाइजेशन टेक प्लेस। कुछ हद तक ये मॉलिक्यूल जो है वो आयनाइज होता है, ये आयंस के फॉर्म में टूटता है। इस वजह से जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो वीक एसिड होते हैं। अब यहाँ पे आपको जो ध्यान देने वाली बात ये है कि यू हैव गॉट 4 हाइड्रोजन एटम्स इन दिस कंपाउंड। यहाँ पे यदि यू हैव गॉट 3 हाइड्रोजन एटम्स बॉन्डेड टू दिस कार्बन एंड 1 ओवर हियर, तो कोई भी ऑर्गेनिक एसिड जो होता है उसका बस ये वाला हाइड्रोजन जो है वो आयनाइजेबल होता है, और ये हाइड्रोजन जो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है ये आयनाइजेबल कभी नहीं होता है। तो आप कभी भी यहां से हाइड्रोजन को नहीं निकालोगे, हाइड्रोजन बस यहां से निकलेगा। सो लेट्स सी हाउ इट विल टेक प्लेस। CH3। अब एक और बात ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो कोवलेंट बॉन्ड है। तो जैसे प्रीवियस केस में हमने डिस्कस किया था आयनाइजेशन, वैसे ही आयनाइजेशन इस केस में भी होगा। सो CH3COO-, जो कोवलेंट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे। क्यों ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ऑक्सीजन दोनों ही इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, और बेचारा हाइड्रोजन जो है वो बिना इलेक्ट्रॉन के रह जाएगा। तो ये हो गया आपका आयनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड। और ये हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन एटम्स जो है वो आयनाइजेबल कभी भी नहीं होते ऑर्गेनिक कंपाउंड में, बस
ये जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है हाइड्रोजन, वही आयनाइजेबल होता है किसी भी ऑर्गेनिक एसिड में. सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड. और सिंस इसका पार्शियल आयनाइजेशन होता है, कुछ हद तक ही मॉलिक्यूल जो है वो टूटते हैं आयंस के फॉर्म में, इस वजह से जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, वो काफी वीक एसिड होते हैं. सो अनदर एग्जाम्पल आई कैन सी इज दैट फॉर्मिक एसिड. ये है फॉर्मिक एसिड जो एंड किस्टिंग में होता है. सिमिलरली आयनाइजेशन विल टेक प्लेस. सिर्फ ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा, ये हाइड्रोजन जो है वो आयनाइजेबल नहीं होगा. सो HCOO minus plus H plus. This is how the ionization takes place. So acids are substances that furnish H plus ions in aqueous solution, while bases are substances that furnish hydroxyl ion OH minus in aqueous solution. तो उसको भी देखते हैं. एक बेस हमने ले लिया NaOH, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोला जाता है. सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो, या कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं इसको. सो ये जब वाटर में डिसॉल्व होगा, देन इट विल स्प्लिट अप एज Na प्लस एंड OH माइनस. ये देखिए इसने हाइड्रोक्सिल आयन, यही हाइड्रोक्सिल आयन है, इसने हाइड्रोक्सिल आयन को फर्निश किया है, इस वजह से NaOH एक बेस है. अदर एग्जाम्पल्स लेते हैं बेस का. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे आप देख रहे हो कि दो हाइड्रोक्सिल आयन ये फर्निश करना चाहिए क्योंकि इसके पास दो OH है. सो इट विल फर्निश, इट विल आयनाइज एज Ca2 प्लस एंड OH माइनस इन द एक्वस सोल्यूशन. और ये दो OH माइनस जो है वो फर्निश करेगा. तो यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो भी आयनाइजेशन का प्रोसेस होता है, ये प्योर फॉर्म में नहीं होता है. यहाँ पे वाटर का प्रेजेंस जो है वो जरूरी होता है. वाटर के प्रेजेंस के बिना ये जो कोवलेंट कंपाउंड है, ये जो कोवलेंट बॉन्ड है दो एटम्स के बीच में, वो फर्निश नहीं होगा या वो टूटेगा नहीं. तो इस बात का आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं वो वाटर के एब्सेंस के बिना वो टूटेंगे नहीं और उनका आयनाइजेशन नहीं होगा. सो दे विल नॉट बिहेव एज एसिड्स इन ड्राई कंडीशन, और वो एसिड के टेस्ट भी नहीं देंगे, वो एसिड की प्रॉपर्टीज भी शो नहीं करेंगे. सो प्रेजेंस ऑफ वाटर जो है वो इम्पोर्टेंट है. थैंक यू. दैट्स ऑल फॉर टुडे.